Hello students, this video is basically for class 8, chapter number 12, that is your friction, and so we'll be starting this chapter today and we'll get a brief idea about this entire chapter. So let's start. We have a single video for this chapter, right? So we have discussed the chapter previously, remember force and pressure. So there we have studied something about contact forces, means the forces which is acting between two bodies when they are in contact with each other, right? And we studied like there are different type of categories of forces like which is supposed to be acting. We have seen different types. So friction was one among them. So what is it? Friction, this is, friction is nothing but a sort of force which is acting between two bodies when they are in contact with each other, right? And what the beauty about friction is, like, it simply says here, whenever any body is there in sort of motion, right, friction is something which always opposes the body to come into the state of motion, right? Normally you would have seen, like, when you are riding a bicycle, right, and if you stop pedaling and without applying the brakes, you will hardly go 4 to 5 meter of distance, then your cycle will like start getting slowing down and it will stop ultimately. So there you haven't applied brake. Then what was the force which was acting? What was that cause actually which was acting between the between the, like, you can say, the tire of your cycles and the surface of earth that was existing and which was making it to stop actually. So there is nothing but a friction, you can say, right? So friction acts between two bodies which are in contact with each other, and it is something which always opposes the state of motion for a particular body, right? Now what is the cause of friction, if you have to look at, right? Normally you'd have seen, like, if you are trying to roll something, like if you are trying to just push something, a very heavy object, particularly, for example, say that mass of that object is around 40 or 50 kg, and if it is kept on road, if you are trying to like push it, it will be very difficult for you to push it, right? So but if that thing, exact same thing has been kept in your floor, like, I'm considering the fact that, like, your how the house is having a proper marble flooring, or you can say tile flooring, there you would be at least able to push it, right? So what happens exactly is, like, you can say कि यार बाहर सड़क की जो सरफेस होगी वो थोड़ी स्मूथ नहीं होगी, राइट, थोड़ी रफ और खुरदरी होती है, बट अगर अपने कमरे की फ्लोर की बात करें तो आपकी जो टाइल्स वगैरह होती है उनकी सरफेस थोड़ी चिकनी होती है. So what is friction? So if you go to the microscopic level, between at the contact surface between the two bodies, there are, like, you can say, irregularities, right? अगर आपको एक बुक में डायग्राम देके रखा हुआ है 12.1, here they have kept a box on a proper slab or something, you can say, right? So if you are looking at the microscopic level, you will see, like, there will be some sort of grooves and depression will be area, so it is not uniform अगर आप microscopic level पे देखें. And what happens, there happens interlocking of the two surfaces, यानी कि जो आपका बॉक्स रखा हुआ है, राइट, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है और नीचे की जो आपकी सरफेस है, राइट, वो स्मूथ नहीं है, राइट, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ गड्ढे या फिर क्या कह सकते हैं इरेगुलरिटीज. इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज हैविंग समथिंग सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन ओवर देयर, एंड दोस डिफॉर्मेशंस गेट इंटरलॉक, एक दूसरे में क्या करते हैं, फंस जाते हैं. सो दैट्स व्हाट इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो फ्रिक्शन अल्टीमेटली यू कैन गेट एन आइडिया कि ऐसी सरफेस में थोड़ा कम होता है, जो थोड़ा सरफेस थोड़ी आपकी स्मूथ होती है, एंड बट जो सरफेस थोड़ी आपकी रफ होती है, वहां पे आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, राइट? Right. So now studying what are the effects of friction, right? What are the effects? You can simply say, यार, कि अगर आप देखिए, मान के चलिए कि कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, इट इज लाइंग stationary on that, you can say, particularly on the floor of your room, right? तो ऐसी रखी रहेगी, right? राइट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर आपसे कोई छू नहीं रहा है, कोई अल्टीमेटली कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, दैट ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एज इट इज, राइट? सो व्हाट इज द मेन रीजन कि वो अपने आप अपनी जगह पे मेंटेन रखी है? यू कैन लुक एट एनीथिंग लाइक दैट इज केप्ट इन योर रूम. आप बेड देख लीजिए, सोफा, दीवान, और वॉट एवर चेयर्स माइट बी लाइंग देयर इन योर रूम, राइट, वो अपने आप अपनी जगह पे रुकी हुई हैं. सो व्हाट इज समथिंग दैट फोर्स विच इज होल्डिंग देम टुगेदर? दैट इज नथिंग बट द friction. What is the next point? They are telling that friction results in wear and tear of the surfaces in contact. Normally you would have seen कि यार आप साइकिल के टायर अपनी कुछ टाइम के बाद में चेंज कराते हैं, या फिर आपने अपने पापा को देखा होगा, लाइक फॉर द पार्टिकुलर व्हीकल्स दे वुड बी चेंजिंग द टायर. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, cause tires are the portion which are coming continuously in contact with the surface, right, with the road, right, and cause फ्रिक्शन हमेशा लग रहा होगा, भले वो गाड़ी आपकी खड़ी रहे या फिर जितना चलती रहे, और जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कांटेक्ट में आएगा बेसिकली. तो होगा क्या, आपके टायर डिफॉर्म हो जाएंगे, टायर आपके खराब हो जाएंगे. सो दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देयर आर चांसेस कि आपकी सरफेस थोड़ी क्या हो जाएंगी, खुरदरी हो जाएंगी. देन लास्ट पॉइंट इज समथिंग लाइक friction produces heat, and this is something we have discussed in the previous chapter also, right? During the colder seasons, right, what you do, you will start rubbing your hand, right? So when you people are rubbing your hand, what happens exactly is, like, दो सरफेस हैं, दोनों की दोनों बिल्कुल स्मूथ तो है नहीं, कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेगुलरिटीज हैं. तो जब आप उनको रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन इज समथिंग विच इज रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट. आपको थोड़ा गर्माहट लगती है, राइट? एंड वन मोर समथिंग इज, सम एग्जांपल दैट यू कैन रिलेट इज,
like when they have given one diagram over here, like you are able to burn a matchstick, right? So when you are holding a matchstick and you are rubbing it on that match box, right, basically it is the friction, cause of friction, that heat is getting generated, and that heat is able to attain, right, the proper, or you can say the particular ignition temperature of the matchstick, which ultimately results in the burning of matchstick, right? So moving on to the next surface, like what are the possible reasons which are affecting the friction, right? First point is very clear, like from the whatever we have discussed, it is the nature of surface. भाई अगर आपकी सरफेस जितनी स्मूथ होगी, आपकी सरफेस जितनी स्मूथ होगी, राइट, आपको फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। और जितनी आपकी सरफेस रफ होती चली जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं खुरदरी होती चली जाएगी आपकी, उतना ही फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, राइट। नाउ to understand something, like other point is there one more, that is the weight of an object. Now weight also is something related to your force, and that is your particularly gravitational force. For example, like अगर मैं बात करता हूँ कि राइट आपके घर में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, कमरे में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, हार्डली उसका वजन आधा किलो या 1 किलो के आसपास छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, राइट। आप उसको पुश करेंगे तो आप आराम से धक्का मारेंगे तो वो चल जाएगा, राइट, एटलीस्ट इट विल मूव, इट विल चेंज इट्स पोजीशन। बट इमेजिन अ केस जहाँ पे आपके एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट कितना अराउंड 100 kg है, उसे आप नहीं, हम भी नहीं हिला पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप सोचते हैं जरा वेट पे कैसे डिपेंडेंसी होती है। अल्टीमेटली हमें पता है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एंड दैट इज समथिंग विच रिजल्ट्स इन द अट्रैक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग अराउंड टू बी पुल्ड बाय द सर्फेस ऑफ अर्थ। जो भी चीज है, पानी आपको ऊपर से नीचे गिर रहा है, पेन फेंक रहे हैं, अगर आप छत से कूदते भी हैं तो भी आप नीचे ही आएंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे। सो वाई आप नीचे क्यों आ रहे हैं, राइट। बेसिकली आपका अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ कौन लगा रहा है, आपकी अर्थ की सर्फेस लगा रही है, एंड पुलिंग दैट surface to it, right? And I told you something, right, that if we look at the formula for gravitational force is G is equal to m1 is force is equal to G m1 m2 into upon r square. So basically gravitational force depends on the mass of a particular object. यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि भाई जिस चीज का मास ज्यादा होगा उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, एंड वेट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू कैन से। यानी कि एनीथिंग व्हिच इज हैविंग मोर मास विल बी हैविंग मोर ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन इट, एंड अल्टीमेटली दैट थिंग और ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग मोर वेट, राइट। तो तीनों चीज एक जैसी हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जनरल भाषा में बात करते हैं, वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि यार जनरल कंसेप्ट है कि यार हम मास और वेट को एक ही चीज बोलते हैं, बट वेट एंड लाइक अगर हम बात कर रहे हैं आपका मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। मास इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा या मैं अर्थ पे जाके मैं मार्स पे जाता हूँ या वीनस पे जाता हूँ, मेरा मास उतना ही रहेगा, अराउंड 100 kg, राइट। बट मेरा वेट विल वेरी, राइट, वेट विल वेरी कॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। इवन इन ऑन अर्थ सरफेस, राइट, इफ यू गो टू पोलर रीजन्स, द कंपेरेटिवली जो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा होता है। One second, let me think. Yeah, it's slightly different compared to the one that the bodies which are at the equator, right? So you can say कि यार जिसका वजन ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, उससे फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा कैसे होगा? नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जहां मैंने बोला था कि अब जो 100 किलोग्राम का एक बॉक्स रखा हुआ था, उसका मास ज्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अल्टीमेटली जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो आराम से मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी क्या है, ज्यादा लग रही है, राइट। Now coming back to third point, where you might have an misconcept about that, right? There is area of contact. बहुत जाहिर सी चीज है कि भाई अगर मैं एक पेपर लेके चलता हूँ, मतलब एक सिंपल एक आई टेक एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आई एम कीपिंग दिस थिंग, राइट, है नहीं, बट फॉर एग्जांपल टेक दिस द मास ऑफ दिस थिंग एज अराउंड वेट, फोर्स मास आई एम सेइंग इट्स अराउंड 10 kg। अगर आपका 10 kg का, इट इज नॉट 10 kg बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट टू बी, और मैं कोई बड़ी सी शीट लेता हूँ जिसका 10 kg है, तो आप बोलेंगे कि भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट, उसमें ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, बट आपका इरेगुलरिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट डजंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अल्टीमेटली वेट इज रिस्पॉन्सिबल, कि वेट कितना होगा उसी पे आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है, राइट। बात समझ में आ गई है? तो फॉर आप एक एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर मैं एक पेपर लेके चलता हूँ, पेपर का मतलब if I'm having a very long chart paper, big chart paper over here on the surface of my room, right, I'm just trying to push it, I'll be very easily able to do that. तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि weight is the ultimate factor which is responsible for generating more amount of friction rather than your area of contact. Now coming back to the to our contact, next topic that we have is type of friction. Okay, so whenever you are looking at any object, so what happens basically, either it can be stationary or it can be in the state of motion, या तो वो रुकी हुई होगी या फिर वो चल रही होगी, राइट। सो फर्स्ट टेक द केस व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब आपकी बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट में, ओके। सो ऐसा तो है नहीं कि जब आपकी बॉडी रेस्ट में तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। बेसिकली फ्रिक्शन ही क्या करके रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है,
राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रही है, राइट, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उस ऑब्जेक्ट और जिस ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर वो रखा हुआ है, तो उस फ्रिक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द फोर्स विच विल बी देयर एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग एंड द सरफेस ऑन विच इट इज बीइंग केप्ट, उस टाइम उससे क्या बोलूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल है, एक होता है स्टैटिक, होता है काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, काइनेटिक का मतलब होता है समथिंग इज इन मोशन। सो व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकी हुई है, तो उस टाइम जो आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब आपकी बॉडी मूव कर रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एक वर्ड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, right? Now just keep an example, right? If this is a surface on which I have kept and this is something I'm having a particular object, तो अगर मैं इसे हल्का सा लगाता हूँ ये मूव नहीं करता है, राइट? अगर मैं हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, कॉज फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट साइड में लग रहा होगा, कॉज अपोज करेगा आपका। मैं और थोड़ा जोर लगाता हूँ, ये और ज्यादा भारी लग रहा है मेरे को, फिर अल्टीमेटली मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया तो इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट? तो बेसिकली हुआ गया, फ्रिक्शन डायरेक्टली वेरीज विद द एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, एक ना एक जैसे आप फोर्स लगा रहे आ रहे हैं, फ्रिक्शन भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? बट एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, फोर्स की, जो आपने अप्लाई किया है, उसके बाद में क्या होता है, आपका फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है, राइट? उसके बाद में क्या होगा, आपका बेसिकली आपका बॉडी जो होती है बेसिकली इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो राइट, देन वी हैव a definition that is called as limiting friction. So it can be said as like the maximum force which is required to make any object move on any particular surface is called as limiting friction. इसका मतलब यही है कि जब तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी लगता जा रहा है, अल्टीमेटली आपने एक चीज को धक्का मारा और वो स्टार्ट करके मूव करना, राइट? देखिए फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ मूव नहीं कर रहा है, फिर सच्ची में लगा रहा हूँ मूव नहीं कर रहा है, मूव करना, बट अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट? तो जो मैक्सिमम फोर्स मेरे लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके कारण आपका जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, उस फ्रिक्शन को मैं क्या बोलूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में क्या होता है, आपका काइनेटिक आ जाएगा, राइट? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यू कैन से द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ मूविंग बैक टू ओके, ये तो हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है। नाउ कमिंग बैक टू अ केस व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? So when a body is moving, basically there are two chances, right? और एक बॉडी अगर आपकी मूव करी, दो चांसेस हैं कि मूव करने का तरीका कैसा है, या तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही होगी या फिर वो क्या कर रही होगी, रोल कर रही होगी। आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू हाउ टू रोल इट, लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ अ बैंगल इज देयर, राइट? इफ यू हैव अ बैंगल, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको ये आपका जो ये रिमोट है, इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट? ये मूव कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, इट्स स्लाइडिंग, राइट? धक्का मारना, रेंगते हुए जाना। बट इफ आई टेक दिस केस, राइट, इन दिस वन आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी क्या कर रही है बेटा, रोल करेगी। So right, there's a difference between rolling and sliding. So the friction which is existing between any body, when a body is in the state of sliding type of motion, that time it is called as sliding. And rolling is something which is existing between the object and the surface. When the object is friction will be existing, will be rolling friction. अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। सो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात दे रखी है, एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, नहीं यहाँ पे नहीं है। मूविंग बैक टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब अभी तक हमने जो बात कर रहे हैं, हमने नॉर्मली अपनी अर्थ की सरफेस की बात कर रखा है, वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट लाइक की कोई ऑब्जेक्ट आपकी सरफेस पे रखी हुई है, बट इट इज नॉट द केस कि आपकी खाली हमेशा इस सरफेस पे ही होता है। लाइक इफ यू गो टू एंटर इनसाइड अ लिक्विड, देयर आल्सो यू कैन सी कि यार आपको फ्रिक्शन लगता है, बट फ्रिक्शन फॉर दैट टाइम वी यूज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग, धक्का, राइट? अगर आप एक पानी का कंटेनर लें और उसमें अपने हाथ को मूव कराने की कोशिश करें, सो व्हाट विल हैपन, आपके हाथ को धक्का लगेगा, राइट? द धक्का इज नथिंग बट यू कैन से द फ्रिक्शन which is existing between cause of the liquid, right? Or you can say the drag of water is opposing to your hand to move in a particular direction, right? So what we can do basically to avoid these or to minimize it, right, we have some different type of shapes, and that shape is called as streamline shape. A streamline shape is something like you have studied previously, like fishes have a streamline shapes, and what happens is that it will be taper, it will be narrow at both the ends and right broad at the middle one. यानी कि शुरुआत में थोड़ी नुकीली रहेगी, एंड में थोड़ी नुकीली रहेगी, और बीच में क्या रहेगा, थोड़ा आपका ब्रॉड वाला पोर्शन रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी, राइट, यू कैन से लाइक इट्स समथिंग लाइक दिस, और यू कैन से लाइक शुरुआत में आपका आपके फ्रंट एंड पे थोड़ा नैरो है, फिर आपका थोड़ा ब्रॉड हो जा रहा है, फिर वापस आपका क्या होता है, पतला हो जाता है, मछली की शेप जैसे होती है। सो दैट शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन शेप, राइट? नॉर्मली आपकी फिशेज के अंदर मिल जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इज लाइक बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू स्विम, राइट, ही इज ट्राइंग टू स्विम, ही इज ट्राइंग ट्राइज टू क्या कहते हैं,
put himself, or you can say, right, his body adjusts himself into a streamlined body, and that can be shown with the help of one image, right? So this is something. If you look at this case right over here, you can say कि हाँ देखिए, this is the way the person will align himself when he is trying to swim, right? So you can see like शुरुआत में narrow है यहाँ पे, और यहाँ पे narrow है, फिर बीच में थोड़ा broad है, और फिर लास्ट में फिर से क्या हो रहा है, narrow, so that he can cut the dragging force which is opposing the state of motion, right? Now moving on to the topic that we have, next topic, right? What is happening, it is not like आपकी liquid में आपका drag लगता है, it happens in case when a body is moving in air also. For example, you would have seen कि आपके जितने भी आपके planes होते हैं, they all are having a streamlined body, right? Even the birds have, if you look from the bottom when a bird is flying, the shape is exactly your streamlined, right? So that was the case of fluid friction. And now comes the advantages वाला portion कि भाई advantages क्या है friction के, बहुत हैं, राइट? सबसे पहली बात, आपको सोच के आप चल पाते हैं, राइट? यू आर एबल टू वॉक, सो यू वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। अगर आपको अपने कमरे में बोलूँ, आपका कमरा काफ़ी ड्राई है, राइट? आप चल पा रहे हैं, बट इफ आई स्पिल समथिंग वाटर ओवर देयर, बहुत स्मूथ सरफेस है, उस पर मैंने पानी फेंक दिया, क्या आप उस पर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली सरफेस अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दैट सरफेस। तो राइट, बेसिकली इट इज अल्टीमेटली द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज हेल्पिंग यू टू पीपल टू वॉक, राइट? देन अब देखते हैं, राइट? इवन इफ दिस थिंग इज अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स विच आर मूविंग, राइट? बेसिकली दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन विच इज एनेबलिंग देम टू मूव ऑन और प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? एंड one more thing, when you are driving a vehicle or you are driving your bicycle, right, how you are able to stop, right? आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, अब when you apply brake, तो what happens is like the brake pads, आपने देखा होगा साइकिल के टायर के आगे रहता है, वो क्या होता है, it will just get stuck to your tires and it will oppose a motion, right? तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपको एक तरीके से रोकने में भी हेल्प कर रहा है आपको, राइट? एंड हाउ यू आर एबल टू राइट, बेसिकली आप एक फाउंटेन पेन या कोई भी पेन पेंसिल चलाते हैं, अपने पेपर पे चलाते हैं, so it is the friction which is ultimate resulting in the very good handwriting that you people are having over there, राइट? क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, इट विल बी बिटवीन द टिप ऑफ योर पेन एंड द surface of the paper, right? And one more thing that we have seen, right, burning of matchstick is a classical example, right? Friction के कारण heat generate होती है, heat generated will be helping it attaining the proper ignition temperature for that. Now what are the disadvantages, right? ये तो बहुत सारे फायदे हो गए, नुकसान देख लेते हैं थोड़े से। आपके नुकसान क्या आते हैं, देखिए बेटा, ultimately what happens is like इन टर्म्स ऑफ बिग मशीनरीज इफ यू आर कंसिडरिंग, राइट, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर हम बात करें, या फिर कोई नॉर्मली केस लेके चलें जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, राइट? सो टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम रेस्ट टू मेकिंग इट पर्टिकुलरली मूव, आपको काफ़ी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, राइट? अगर आपको सोचिए, देखिए अगर एक पत्थर रखा हुआ है आपके घर के आसपास में कहीं पे, आप उसे अभी तो स्टेशनरी में आप धक्का मार के चलाने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, तो आपको काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, राइट? सो अल्टीमेटली इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, राइट? इवन फॉर बिग बिग मशीनरीज इन अ प्लांट, किसी फैक्ट्री में जाएं आप, तो अगर आपकी मशीनरीज रुकी हुई हैं और आपको अचानक से सारी मशीन चलानी है, यू नीड टू अप्लाई टू मच ऑफ एनर्जी, राइट? आपकी काफी ज्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, राइट? वियर एंड टीयर, अब ये तो आप समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा, आप जूते चेंज क्यों करते हैं, राइट? जूते का सोल खराब हो जाता है आपका, आप बाइक्स या व्हीकल्स के अपने टायर्स की चेंज करते हैं, बिकॉज दे गेट वोर्ड आउट एक्चुअली, वर्न आउट, सॉरी, खराब हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक और नुकसान हो गया है। अब होता क्या है, देखिए, अब फ्रिक्शन के बाद में सिंपल एक केस लेके चलते हैं, जब आप अपने हाथ रब कर रहे हैं, दैट टाइम आल्सो हीट इज गेटिंग जनरेटेड। नाउ थिंक अबाउट द बिग बिग मशीनरीज दैट आर देयर इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री व्हिच आर रनिंग एंड कंप्लीटली अटैच्ड टू ईच अदर, फ्रिक्शन के कारण चल तो पा रही हैं, जब अपने हाथ आप रब कर रहे हो तो गर्म हो जा रहे हैं। थिंक अबाउट दोज different parts of machines, right? Different machines which are in contact with each other, जब वो चल रहे होंगे आपस में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी नहीं होगी, तो उसी कारण भी क्या होता है, काफी नुकसान है आपका, बेसिकली आपकी फालतू की बहुत हीट जनरेट होती है, एंड हीट इज समथिंग विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ मोर एफिशिएंट वे, राइट? अब एक और बात आती है कि नॉइज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट? अगर आपने कई बार देखा होगा किसी के, आपने कभी इंडस्ट्रियल साइट या प्लांट्स वगैरह विजिट किए होंगे, तो बिग बिग मशीनरीज के कारण क्या होता है, खड़खड़ खड़खड़ आवाजें आती हैं बहुत ज्यादा चलने की, राइट? एंड वी लिव इन एरिया वेयर वी हैव शुगर प्लांट, तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा आवाजें आती हैं, राइट? नाउ हाउ कैन यू रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट? सो इट्स समथिंग, राइट? अब आपने देख सकते हैं, आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज लुब्रिकेंट? विच लुब्रिकेट्स, यानी विच स्मूथन्स द सरफेस,
राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि राइट, व्हेन यू आर इन योर साइकिल, राइट, आप लोग अपनी साइकिल में जाके दुकान पे ग्रीस डलवाते हैं, राइट, ग्रीस डलवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपकी साइकिल स्मूथ होती है, पैडलिंग काफी स्मूथ हो जाती है आपकी, राइट। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पैडल, रोलिंग पैडल एंड द चेन, राइट, टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन और आपकी पैडलिंग स्मूथ हो जाए, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आपने एक और वर्ड सुना होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। Normally, two-wheelers and four-wheelers, they add up this thing so that there is a proper smooth functioning of the engines of the vehicles. Then apart from that, आपने एक और चीज देखी होगी, right? When you are playing कैरम बोर्ड, राइट, तो अगर उसमें एक टेल्कम पाउडर अलग से आता है, राइट, इफ यू स्प्रिंकल दैट, आपका स्ट्राइकर विल गो वेरी स्मूथली, राइट। सो व्हाट कैन बी डन, आप पाउडर स्प्रिंकल तो कर रहे हैं, तो उसके बाद स्प्रिंकल हो जा रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स विच reduces the friction are called as lubricants, right? Next is something, your soap solution. Soap solutions are basically used in very crushing, stone crushing or grinding machineries, like very big plants it is being used. One thing is like, soap solution basically means soap or water ka mixture hoga, and it will be reducing the friction. That is very good. But apart from that, whatever the heat is getting generated, that can also be absorbed by the water. That will be part of soap solution, right? Now, ball bearings is something, right? It is being used in vehicles, right? So ball bearings का मतलब क्या होता है? Normally in the figure 12.8 you can see clearly, right? There is one inner circle and one outer circle. So if you have to rotate outer circle, so its motion would be something like this. So your surface, outer surface, is continuously sliding over the inner circle, or you can say over the inner surface, right? So to make it more smoother, what happens is like, between these two surfaces you insert ball bearings, so that motion is very smooth. And one more thing is like, rolling friction value is always less than the sliding friction. किसी भी चीज को रोल करने में आपको कम ताकत लगानी पड़ती है एज कम्पेयर टू धक्का मारने में, राइट। सो दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन टर्म्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स। एंड बाय पॉलिशिंग सर्फेसेज, राइट, अगर आप किसी सर्फेस की बहुत ज्यादा पॉलिश करते हैं, राइट, वो आपकी स्मूथनर आते हैं वगैरह वगैरह, तभी आप फ्रिक्शन को स्मूथ कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इरेगुलरिटीज को खत्म करना चाह रहे हैं, राइट। देन लास्ट पॉइंट इज बाय इंप्रूविंग डिजाइन्स, राइट। नाउ वी हैव सीन इन केस ऑफ submarine ships and planes, we are supposed to have a streamlined body so that we can reduce the drag. Now these are the methods for decreasing the friction. Now how can we increase the friction, right? First of all, right, you would have seen, right, अगर हम बात करें, सिंपल सी बात करते हैं कि राइट, आपने अपने वुडलैंड की शूज देखे होंगे और सम स्पोर्ट शूज देखे होंगे, राइट। दे हैव इन द सोल बहुत सारे उनके अंदर गड्ढे होते हैं, राइट, एंड वी कॉल देम एज ट्रेड्स, राइट। एंड नॉर्मली इफ यू हैव लुक वुड हैव सीन अ ट्रैक्टर, राइट, उनके जो पिछले टायर होते हैं, आगे टायर होते हैं, उनके टायर्स के बीच में बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन होता है, दोज आर कॉल्ड एज ट्रेड्स। एंड द रीजन फॉर दैट इज टू गेट अ प्रॉपर ग्रिप, राइट। अब देखिए, आपके पापा फॉर्मल शूज भी पहनते होंगे, दे वुडंट बी हैविंग दैट मच ऑफ डीपर डिजाइन ऑन देयर सोल, बट अगर आप अपने पापा के अपने आप स्पोर्ट शूज देखेंगे, वहां पे आपको डिजाइन मिल जाएगा, काफी अच्छे नीचे डिजाइन रहता है सोल के अंदर, एंड दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ग्रिप टू द surface, right? Now second is given is like, you would have seen some weight lifting videos for Olympics and all, तो वहां पे आपने देखा होगा कि दे आर लिफ्टिंग दैट बार ऑन द एंड ऑफ विच सम वेट्स आर बीइंग केप्ट, तो क्या करते हैं, वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड दैट पाउडर इज वेरी स्टिकी, लाइक मतलब वो हाथ में चिपक जाता है, सो दैट यू कैन पर्सन कैन गेट अ प्रॉपर ग्रिप ऑफ द हैंडल और वट एवर ही इज ट्राइंग टू होल्ड दैट। तो वहां पे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, राइट। एंड नॉर्मली वन थिंग इज लाइक, आपने अगर दौड़ते हुए पर्सन को देखा हो, पीपल हु आर डूइंग स्प्रिंटिंग और रनिंग, एंड द माउंटेनियर्स हु बेसिकली क्लाइम माउंटेन्स एंड ऑल, तो उनके शूज में, ट्रैकिंग शूज जो होते हैं, उनके सोल्स के अंदर भी काफी आपको अंदर डिजाइन मिल जाता है, एंड काफी बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं बेसिकली, एंड दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द इरेगुलरिटी, because that's a part of the shoes will be coming in contact with the surface, right? Okay, now after that we have seen, right, when we are holding the grip of a handle of a bicycle, और बाइसिकल आप चलाते हैं, जो आपका हैंडल रहता है उसमें भी काफी ग्रिप रहती है, ताकि ऐसा नहीं हुआ कि हल्का सा झटका लगा और आपके हाथ से स्लिप होके आपके मुंह पे चोट चाट लग जाए। तो टू गेट अ फर्म ग्रिप we have different designs or patterns, so that it is properly, people are able to hold it. And when we are playing cricket, on the handle of the bat, right, आप एक रबर की coating लगाते हैं, so that you can get a firm grip while hitting the ball, right? And last thing is like, when we are designing our house, right, people are making their house, so we use tiles or floors in such a way that बहुत हल्का सा वो खुरदरापन या रफनेस रहे उसकी सर्फेस के ऊपर, so that you people are not falling away after, you would have seen like, आपके घर में टाइल्स वगैरह 5-10 साल के बाद में चेंज होती हैं, एंड द रीजन इज दैट जो जेंटल रफनेस होती है सरफेस के ऊपर, वो क्या होती है, घिस जाती है, वो बिकम स्मूथ एक्चुअली। सो दैट इज बीइंग डन। So this was your topic and entire chapter. Okay, then thank you guys.